Questions, guys? Good afternoon. Welcome to the vocabulary batch, guys. This is, completely like dedicated to the vocabulary part only. Let me take the, पहले sheet ले लेता हूँ यार, guys. Just give me 1 minute, guys. Just give me 1 minute. I'm taking the sheet. हाँ जी, आ जाइए जल्दी से देख लेते हैं. What do we have today? Guys, I hope we got the idea of all the, vocabulary that we learned like in the last class. I think हम लोगों को एक अच्छा आइडिया हो गया था जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. What do you have to say about it? एक मिनट दे दीजिए बस. I am just, downloading the file. I think it is taking too much of time. आने दीजिए, चलिए. Yes, I can see everyone. I believe so. I can see everyone, right, guys? Sir, PRT batch का आप कितना time students? Your previous class was very good. I hope you got the very good idea of the vocabulary part, guys. This class is English to English, and we'll try to speak 90% of the English language, and we'll speak only 10 minutes of, like going with that particular stuff, which is, मैं क्या बोलूं उसको, which is more related to Hindi language. So आज हम देखेंगे 90% will keep the class in English and 10% will keep the class in Hindi only. Yes, so we have to start with the 9th number, or we'll try to finish till 20. Or we have to take at least 6-7 classes for root words, right? We have to learn at least 6-7 classes for root word. Yes, welcome है अरुणा, कल्याणी, मोनिका, अन्वेषा, करुणा. Welcome to everyone, guys. I hope you will learn something out of this batch, and I'm gonna give my heart and soul to everything, whatever I'm going to teach here, right? So this batch is going to be a transformational in terms of the vocabulary part, or will have the metamorphism. देखिए guys, सीधी सी बात है. Now the people who are starting with the Bani and the Bona, anyone which is standing with the Bani and the Bona, that is always kind, gentle, sweet, है ना? Kind, gentle, like very very helping. Okay, इसका एक चार्ट बनाते हैं guys. देखिए, let's make a chart of this. If I am saying benevolent, right, so that's a very very kind person. If I am saying benevolent, that's a very very kind person. And guys, Bani is used for good. Bani is used for good, right? I've received only 3 videos on clause in your record classes. रविता यार, इस पर एक बार देखते हैं, बात करते हैं. अभी चलो 1 घंटा पढ़ाई करते हैं, और जिसको भी जो दिक्कत है वो मेरे टेलीग्राम पे मुझे अप्रोच कर सकते हैं. इंग्लिश डिस्कशन विद दीपक सर. अब अगले 1 घंटा पढ़ाई करते हैं. लेट्स डू सम स्टडी फॉर नेक्स्ट 1 hour. नो क्वेरीज एट ऑल एक्सेप्ट दी वोकैबुलरी पार्ट. ओके, एक्सेप्ट दी वोकैबुलरी पार्ट. वी आर नॉट सपोज टू आस्क एनी अदर क्वेश्चन. चलिए देखिए, बैनी जो है वो गुड की बात करते हैं, और बैनी का जो ऑपोजिट है गाइस, बैनी का ऑपोजिट है वो है मैल. तो जो बैनी होगा उसका बिल्कुल ऑपोजिट बन जाएगा मैल से. तो अगर बेनीवोलेंट हेल्प कर रहा है तो गाइस मैलीवोलेंट जो होगा ना वो बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा, वो बहुत ही बेकार होगा. ठीक है, जैसे इफ आई एम सेइंग बिनाइन विच इज नॉट हार्मफुल, कैंसर वॉज इन बिनाइन स्टेज, नॉट हार्मफुल, राइट? तो opposite will be malign. Malign will be very harmful, and malign is also used to,
किसी की इमेज खराब करना, मेलाइन जो है किसी की इमेज खराब करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। अब अगर मैं बोलूं बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर वो लोग होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, काइंड ऑफ अ काइंड पर्सन, ठीक है। इसका ऑपोजिट हो जाएगा मैलेफैक्टर, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, मैलेफैक्टर। इफ यू आर अ बोनाफाइडी पर्सन, बोनाफाइडी मीन्स गुड फेथ, इन गुड फेथ, I have bona fide intention to help you out in this case. I have bona fide intention to help you out in this case. तो bona fide in good faith. बोना का ऑपोजिट क्या हो जाएगा गाइस, बोना का ऑपोजिट हो जाएगा मेलाफाइडी, ठीक है। बोना का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, मेलाफाइडी। सो दिस इज द वे यू कैन क्रिएट वर्ड्स। द राइट ऑपोजिट ऑफ बैनी इज मैल, राइट, राइट ऑपोजिट ऑफ बैनी इज मैल, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए गाइज, यहां पर बेनीवलेंट काइंड है, काइंड मनी वनी तो नहीं देता लेकिन बड़ा हेल्पफुल होता है। सो द राइट वर्ड टू बी मार्क्ड हेयर इज, द राइट वर्ड टू बी मार्क्ड हेयर इज बेनीफैक्टर। बेनीफैक्टर इज द पर्सन विच इज, सर वीडियो इज नॉट क्लियर, दीपाली वाई वीडियो इज नॉट क्लियर, मतलब इन टर्म, इन व्हाट टर्म्स, लाइक अब आपको बताओ ये दिख रहा है वीडियो सामने, मेरे को बता दीजिए सामने दिख रहा है। अब जैसे देखो बेनीडिक्शन, अगर इफ आई एम टेकिंग अ वर्ड बेनीडिक्शन, तो गाइज बेनीडिक्शन में व्हाट डू वी हैव, बेनी इज फॉर गुड एंड डिक्ट इज फॉर स्पीक। बेनी इज फॉर गुड एंड डिक्ट क्या है गाइस, स्पीक, राइट। बेनीडिक्शन, यार सब तो क्लियर है, इज एवरीथिंग ओके, ऑडियो वीडियो ओके, एक बार जस्ट गिव मी अ थम्स अप इफ ऑडियो वीडियो इज ओके फॉर ऑल ऑफ यू। अगर ऑडियो वीडियो ओके है तो जस्ट गिव मी अ थम्स अप गाइस, सो दैट वी कैन स्टार्ट और वी कैन कंटिन्यू विद दिस। Guys, then it is a personal problem. If the video is not working, that is your personal video problem or the net problem. Rest of the people are saying good. Okay? Rest of the people are saying good and going fine. Ask her to check the resolution. It seems okay to me, yaar. It seems okay to me. Everything is clear in the video. चलिए, इंडिविजुअल नेट प्रॉब्लम है गाइस। सो बेनेडिक्शन ऑपोजिट इज मैलेडिक्शन। मैल इज बैड स्पीकिंग, मैल इज बैड स्पीकिंग, है ना, और डिक्ट का मतलब होता है स्पीक। सो मैलेडिक्शन इज बेसिकली कॉल्ड एज, यू नो, इसको आप ये भी बोल सकते हैं किसी को कर्स करना, है ना। और अगर मैं बोलूं कर्स करना, ठीक है, और अगर उसको मैं लूं तो क्या बोल सकते हैं, किसी को कर्स करना, एग्जीक्रेशन करना, किसी को कर्स करने के लिए हम मैलेडिक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस संसार में द मोमेंट यू स्टार्ट ग्रोइंग, पीपल विल स्टार्ट, यू नो, गिविंग यू लॉट ऑफ मैलेडिक्शन, पीपल विल स्टार्ट डिक्राइंग यू, पीपल विल स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग यू, राइट। तो बेनीवोलेंट काइंड हो गया, ऑपोजिट कैसे निकालेंगे, मैलीवोलेंट। बेनेफैक्टर का ऑपोजिट कैसे निकालेंगे, मैलेफैक्टर, राइट। एंड द बोनाफाइडी ऑपोजिट इज मैलाफाइडी। एंड समैरिटन कौन होते हैं गाइज, आई हैव गिवन दिस एग्जांपल एन नंबर ऑफ टाइम्स इन माय यूट्यूब क्लासेस एज वेल, दैट सोनू सूद इज अ समैरिटन। एक जो सोनू सूद है गाइज, वो एक बहुत समैरिटन की तरह काम करता नजर आ रहा है, ठीक है। समैरिटन आर दोस पीपल हु प्रॉब्ली हेल्प अदर्स विदाउट एनी एक्स टू ग्रिंड, विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी पर्सनल मोटिव, विदाउट एनी वेस्टेड इंटरेस्ट, राइट।
यार देखो, मैं फिर बार बार बोलता हूं, आपका इंडिविजुअल नेट प्रॉब्लम होता है गाइस, तो उसको प्लीज उसको चैट में मत बोला करे, क्योंकि अगर वीडियो में कोई इश्यू होता तो आई कुड हैव गॉट इट फ्रॉम एवरीवन, राइट? सो दैट्स एन इंडिविजुअल प्रॉब्लम इफ योर नेट इज नॉट सपोर्टिंग यू। तो कहीं पर आप देखिए कैसे है। चलिए, समारिटन बहुत ही फरिश्ता, इसको व्हाट डू वी कॉल्ड इन हिंदी? जो फरिश्ता होता है। Guys, there is a scheme from Delhi government and the scheme name is Good Samaritan. It means if a person takes someone who probably met with an accident to the hospital and gets him treated, so that is considered as, the Samaritan one. अगर मैं बोलूं Samaritan वो लोग होते हैं जो दूसरे लोगों की मदद करते हैं। जैसे आप जब भी कोई ब्लाइंड पर्सन को देखते हैं, सपोज यू सी अ ब्लाइंड पर्सन एंड यू हेल्प हिम आउट टू क्रॉस द रोड, सो आई विल कॉल यू अ समारिटन। सपोज अ पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट एंड यू टुक हिम टू द हॉस्पिटल एंड गेट हिम एडमिटेड एंड गेट एवरीथिंग in a right place, you are a Samaritan. Government is going to award you for this 2000 rupees. Okay, it's an Arvind Kejriwal, I believe, is a government scheme. If a person takes someone else to the, भाई मैं कहां से मैडम लग रहा हूं? प्लीज इंक्रीज योर वीडियो क्वालिटी मैडम। अरे भाई मैं मैडम दिख रहा हूं क्या? इतना बड़ा खड़ा नहीं दिख रहा? हाँ, कम से कम मैडम तो मत बोलो यार मुझे, ठीक है? कोई नहीं, इंक्रीज योर वीडियो क्वालिटी कर लेंगे यार, अब तो वीडियो क्वालिटी इज गोइंग एवरीथिंग वेरी फाइन। सो समारिटन इज अ वेरी वेरी नेक आदमी हु लव्स टू हेल्प अदर्स। सोनू सूद इज अ समारिटन, राइट? सोनू सूद ने जो लोगों को घरों में वापस भेजा, तो एक समारिटन की तरह काम किया, राइट? ये ध्यान रखिए। चलिए, ऑल फोर वर्ड क्लियर? द राइट आंसर इज बेनिफैक्टर। ऑल फोर वर्ड क्लियर? The right is benefactor. The purpose of this class will be to clear 60-70 words in a particular class, right? आपके कमेंट्स नम्रता में I can see your comments नम्रता। चलिए, let's go for the next one. Mal जो है guys, mal is used for bad. Mal is used for bad, doing something in bad faith or in an attempt to deceive someone. Doing something in bad faith. Your English fluent everyone? देखो guys, I will speak very simple and sober English so that everybody can get the understanding. I'll not use difficult word. Why I am using more and more English? There is a reason behind it. The more you listen to, the more you will get language. Okay? Can we call philanthropist to an extent? चलिए आते हैं गाइस। देखो, चारों में मैल है, इसका मतलब they are not giving some kind of bad thing to all of you. So if I am talking about I do not have any mala fide intention to help you out. देखिए गाइस, सीधी सी बात है, I am into professional field, ठीक है? I am taking a little bit amount from all of you and giving you my knowledge and imparting you my knowledge. So I do not have mala fide intention in my mind. Some people keep on saying money minting shop hai. Do you know the money minting shop, guys? What do you mean by money minting shop? Mint क्या होता है? Mint होता है टकसाल, जहां पे पैसा बनता है ना? तो कई बार लोग बोलते हैं ऐसे, यार ये तो मनी मिंटिंग शॉप बन गए हैं। गाइज, नोबडी फोर्स यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई बैच, ठीक है? इट वॉज एंटायरली योर चॉइस, ठीक है? इट वॉज एंटायरली योर डिसीजन। एंड द बेस्ट पार्ट इज द ओनली द फ्रस्ट्रेटेड पीपल फ्रॉम देयर ओन लाइफ कीप ऑन स्पीकिंग एन नंबर ऑफ थिंग्स एंड द नेसेयर। कौन होते हैं नेसेयर? गाइज, व्हाट डू यू मीन बाय नेसेयर? बड़े पैसिमिस्ट लोग होते हैं, जीवन में इनके दुख के अलावा कुछ नहीं होता, दूसरे लोगों को बस ये क्रिटिसाइज करना जानते हैं, एंड दे
अगर मैं बोलूं तो दे कीप ऑन सेइंग, क्या दे कीप ऑन सेइंग, ओहो मतलब ये है वो है, दे कीप ऑन डूइंग लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ एवरीवन। तो मनी मिंटिंग शॉप क्या होता है गाइस? जैसे मैं क्या बोलता हूं, प्राइवेट स्कूल्स हैव बिकम मनी मिंटिंग शॉप्स। प्राइवेट स्कूल जो है वो कहां से उतना एजुकेशन दे रहे हैं जितना वो पैसा ले लेते हैं, है ना? एक स्टूडेंट का 10-10, 12-12 हजार रुपए इन अ मंथ, माई गॉड, एंड दे आर गोइंग थ्रू विद 1000 to 2000 स्टूडेंट्स इन लाइक इन द एंटायर स्कूल। सो दे हैव बिकम अ मनी मिंटिंग शॉप, राइट? टकसाल बन गए हैं। नेसेयर को हम क्या बोलेंगे? देयर विल बी लॉट ऑफ नेसेयर हु विल कीप ऑन सेइंग तेरे बस की नहीं है, एंड यू हैव टू प्रूव देम रॉन्ग। गाइस, सबसे ज्यादा अब जो मजा है ना लाइफ में, व्हेन पीपल से, आपने बोला आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस पीसीएस, हंस पड़ा वो आपको, लेकिन आपने 1 साल बाद उसी को लड्डू खिला दिए कि भाई बन गया हूं, ले खा ले। दैट इज अ बीफिटेड रिप्लाई टू दीज नेसेयर्स। नेसेयर को रिप्लाई आप कभी भी नेसेयर की तरह ना दे, गिव देम द बीफिटेड रिप्लाई विद योर सक्सेस, है ना? अगर मैं बोलूं लेट्स, क्या बोलते हैं, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस बी द नॉइज, है ना? चुपचाप बैठकर काम करो, जिस दिन आ जाए रिजल्ट एक मिठाई लेके उन सारे नेसेयर को जरूर खिला के आओ who were criticizing you and were saying that you don't deserve to be part of that particular batch or sorry thing. Sir, please यार, you won't be able to watch the other people comments, okay? So आप सिर्फ अपने कमेंट्स देख पाएंगे और अपने ही देख पाएंगे, you won't be able to watch the other people comments, okay? चलिए, अब देखो, मैं ऐसे ही बोल बोल के थोड़े थोड़े वर्ड्स याद कराने की कोशिश करूंगा, जैसे नेसेयर मैंने बता दिया आपको, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। मनी मिंटिंग शॉप, कितना प्यारा वर्ड है। इफ यू से मनी मिंटिंग शॉप है ये, तो आपने, किसी ने नीचे कमेंट लिख दिया अध्ययन मंत्रा हैज बिकम मनी मिंटिंग शॉप, मैंने कहा सॉरी बॉस, मनी मिंटिंग शॉप नहीं है। आप कहीं भी जाइए, अगर आपको 540 रुपीज में कोई बैच मिल रहा है विच इज गिविंग यू 60-70 आवर्स ऑफ एजुकेशन, लेट मी नो, I will also buy that batch, right? So money minting shop, कई बार लोग किसी को बोल देते हैं, that is something which I don't believe so is the right idea. चलिए मैं इनको चारों वर्ड को समझाता हूं। मेला फाइडी इंटेंशन, यानी किसी के मन में जब कैसी इंटेंशन हो, बैड इंटेंशन, ठीक है? मैं कह रहा हूं वो ही टुक मी टू दैट एरिया विद हैविंग अ मेला फाइडी इंटेंशन इन हिज माइंड, ठीक है? वो मुझे वहां पर ले गया हैविंग अ मेलाफाइडी इंटेंशन इन हिज माइंड। मैं चारों वर्ड बताऊंगा, अन्वेषा थोड़ा सा वेट करिएगा, है ना? प्लीज वेट फॉर सम टाइम, आई विल एक्सप्लेन ऑल 4 वर्ड्स। और मुझे जल्दी नहीं है यार, मैं बार बार बोल रहा हूं, इन दिस बैच आई एम नॉट एट ऑल इन हरी, माई पर्पज इज टू इंप्रूव योर ओवरऑल सेंस ऑफ द वोकैबुलरी एंड द ओवरऑल आइडिया ऑफ द वोकैबुलरी। मैं यहां पर ये नहीं बैठा कि 4 रूट की 4 इसकी, रूट चलेगा, 10 क्लास चले, कोई इशू नहीं है गाइस, राइट? हां जी, देखो, मैलेडिक्शन हो गया कर्स, मैलेडिक्शन हो गया कर्स। मेलाइन जो है वो बिनाइन का ऑपोजिट है, मेलाइन इज एन ऑपोजिट ऑफ बिनाइन, राइट? मेलाइन, देखो वो समझो बैड फेथ है ना? मेला का मतलब होता है बैड, राइट? और फिड का मतलब क्या होता है? बिलीव। फिड का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? बिलीव, कॉन्फिडेंस। फिड भी पढ़ाऊंगा अभी, देखो फिड से क्या क्या वर्ड बनता है? फिडेलिटी, इनफिडेलिटी, फिड भी पढ़ाऊंगा अभी गाइस। सो अच्छा देखिए, वाई मोस्ट ऑफ द पीपल गेट डाइवोर्स, टेल मी वाई मोस्ट ऑफ द पीपल गेट डाइवोर्स। इट्स नॉट ओनली द झगड़ा विच इज गोइंग ऑन और द क्वारल विच इज गोइंग ऑन, इट इज समटाइम दी फिडेलिटी इन द इनफिडेलिटी इन द करेक्टर। लोग मल्टीपल रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व होते हैं इवन आफ्टर गेटिंग मैरिड, जिसको हम अडल्ट्री भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं गाइस इंग्लिश में? एडल्ट्री। बना लेना यार, कॉपी बना लेना, ठीक है? मैं बार बार बोल रहा हूं, लेट्स मेक योर कॉपी। जितने भी डेली यूसेज के वर्ड होते हैं, आई विल बी शेयरिंग ऑल दोज वर्ड्स। मैं कह रहा हूं यार, इनके बीच में इतना रिलेशन क्यों चला? वाई शाहरुख इज कैरिंग अ वेरी गुड रिलेशन विद गौरी? बिकॉज ऑफ द फिडेलिटी इन द करेक्टर। फिड मतलब विश्वास, उनमें आपस में एक बहुत बड़ा विश्वास है।
अब देखिए बहुत डाइवोर्स होते हैं बिकॉज ऑफ द एडल्ट्री। एडल्ट्री क्या होता है? when a person is in relationship with other man or women। जब एक पर्सन किसी और पर्सन के साथ रिलेशनशिप्स में होता है डिस्पाइट गेटिंग मैरिड, तो उसको हम बोलते हैं एडल्ट्री। ही इज एक्यूज्ड ऑफ एडल्ट्री, उसकी वाइफ ने उसको एक्यूज करा, यू आर इन्वॉल्व इन एडल्ट्री। तो यानी जब कोई किसी और के साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो, दैट इज कॉल्ड एडल्ट्री। और उसी को हम बोलते हैं गाइज इनफिडेलिटी इन करेक्टर। इनफिडेलिटी इन करेक्टर, इनफिडेलिटी मतलब व्हेन समवन इज नॉट लॉयल, ठीक है, व्हेन समवन इज नॉट लॉयल टुवर्ड्स हिज पार्टनर। जब कोई पर्सन अपने पार्टनर को लेके लॉयल ना हो, दैट इज कॉल्ड दी infidelity in character, and I've seen n number of relationship getting broken up because of this particular reason। ठीक है, the most divorce reason either probably the quarrels or the altercations which is going on within the family, or the second biggest reason is the adultery or the infidelity in character, right? Extramarital affairs, yes, you can say post marital affair। ठीक है, ये ध्यान रखना। धीरेन्द्र आई कैन सी योर चैट, धीरेन्द्र आई कैन सी योर चैट। चलिए ज्यादा कमेंट्स नहीं देखूंगा। तो गाइज ये ध्यान रखना, मेलाइन करना होता है किसी की इमेज खराब करना, या मेलाइन बैड के लिए भी बोला जाता है। और मेलीज होता है अगेन कांस्टेंट एनोइंग प्रॉब्लम। मेलीज होता है कांस्टेंट एनोइंग प्रॉब्लम, यानी जिससे नुकसान पहुंच रहा हो। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, एक लाइन देखो मैं बोल के दिखाता हूं। अच्छा एक चीज याद रखना गाइज, बिकॉज मैल इज बैड, सो यू कैन सिंपली मार्क द आंसर मैल एज बैड। डिबॉशरी, करुणा बहुत अच्छा वर्ड है डिबॉशरी, ठीक है, डिबॉशरी भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए मैलीज मतलब होता है जैसे करप्शन हैज ऑलवेज बीन अ मैलीज सिंस इंडिपेंडेंस। करप्शन हमारे देश के अंदर शुरू से एक मैलीज के तौर पे देखा गया है, एक बीमारी है। लोगों के वेन्स में करप्शन घुस चुका है। करप्शन करे बिगर इंडियंस को मजा नहीं आता, दे डू नॉट रैलिश, दे डू नॉट इंजॉय, राइट। तो मुझे लगता है एक मैलीज है जिससे हमें छुटकारा पाना चाहिए। मैलीज को हम बोलते हैं बीमारी। यस करुणा बिल्कुल सही कहा है आपने, स्कॉर्ज। इसके लिए एक वर्ड और हम यूज करते हैं स्कॉर्ज। स्कॉर्ज का मतलब भी होता है एक प्रॉब्लम जो काफी लंबे समय से है। पॉल्यूशन हैज बिकम अ मैलीज फॉर दिल्ली। दिल्ली के लिए एक बीमारी बन चुका है पॉल्यूशन, राइट। इट हैज बिकम अ स्कॉर्ज फॉर दिल्ली। तो यानी मैलीज बीमारी, स्कॉर्ज के लिए भी बीमारी यूज कर सकते हैं, ठीक। तो ये सारे वर्ड हम देख सकते हैं। नॉट इंजॉइंग अदर पीपल इज नॉट अपीयरिंग। यार दूसरे लोग इसमें आते भी नहीं है। यू जस्ट सिंपली कैन सी एंड मार्क योर आंसर। नम्रता, यू आर नॉट सपोज टू सी द चैट ऑफ अदर्स। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा मेलाफाइडी। आ जाइए नेक्स्ट पे चलिए। बैड यूज, मिसयूज ऑफ द वर्ड ड्यू टू इग्नोरेंस। बैड यूज, मिसयूज ऑफ द वर्ड इग्नोरेंस। जल्दी जल्दी बताइए क्या है। देखो अगर लाइक यू कैन से बेनिग्नेंट का अपोजिट बन गया मैलिग्नेंट। कैंसर वॉज इन, ट्यूमर वॉज मैलिग्नेंट, मतलब क्या होगा दोस्तों, इफ द ट्यूमर वॉज मैलिग्नेंट, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? If I am saying brain tumor was malignant, if I can say like the tumor was malignant, we use a word for upcoming, please
इन दी ऑफिंग बोलते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा इलैबोरेट करके लिखा करें, क्वेश्चन को थोड़ा सा इलैबोरेट करके लिखा करें प्लीज। राइट, वी नीड टू इलैबोरेट द क्वेश्चन। देखिए गाइस, इसको समझिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। पहले तो ये समझिए, इफ आई एम सेइंग ट्यूमर वाज मैलिग्नेंट, तो अगर मैंने बोला यार ट्यूमर तो बहुत मैलिग्नेंट है, इट मींस इट इज वेरी वेरी हार्मफुल, इट इज गोइंग टू इंपैक्ट द बॉडी इन अ वेरी वेरी बैड मैनर। राइट, इट इज गोइंग टू इंपैक्ट, कैंसरस बोल सकते हो और मैलिग्नेंट बोल सकते हो। एनीथिंग विच इज मैलिग्नेंट or is in a very very malignant state, that is going to be a very very harmful one. Okay, वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं टू चेरिश मैलिस अगेंस्ट मी, ही इज चेरिशिंग मैलिस अगेंस्ट मी, तो गाइज मैलिस का मतलब क्या होता है? अब देखो सीधी सी बात है, मैल है, मैल का मतलब बैड है ना, इट हैज टू बी बैड ओनली। यू आर चेरिशिंग अ मैलिस अगेंस्ट मी, आई डोंट नो द रीजन यार, क्यों आपको इतना मेरे पे अपने अंदर मेरे लिए जहर भरा है ना, इंग्लिश में बोलते हैं ना, आई डोंट नो। अगर मैं बोलूं क्यों जो है मेरे अंदर जहर भरा है, किसकी तरह है? अगर मैं बोलूंगा इफ आई एम नॉट कैरिंग मैलिस, मैलिस का मतलब होता है व्हेन यू आर बैड अबाउट समथिंग, और किसी के लिए अगर मैं बोलूं तो मैलिस रखना यानी आप उसके लिए बड़ी दुर्भावना रख रहे हो, यू आर कैरिंग अ हेट्रेड फॉर दैट पर्सन। तो मैं कह रहा हूं यार ही इज चेरिशिंग अ मैलिस अगेंस्ट मी, इट मींस दैट पर्सन इज कैरिंग अ हेट्रेड अगेंस्ट मी। तो इंग्लिश में अगर मैल वर्ड आ रहा है तो मैल को हमेशा याद रखना, यार माई पड़ोसी इज चेरिशिंग अ मैलिस अगेंस्ट मी, मेरे तो जितने रिलेटिव है दे आर चेरिशिंग अ मैलिस अगेंस्ट मी। मैलिस मतलब होता है जब आप किसी के लिए हेट्रेड रखते हो, आप उसके लिए बैड फीलिंग रखते हो, दैट इज कॉल्ड मैलिस इन इंग्लिश। अच्छा देखो, मैलेडिक्शन आप देख ही चुके हैं, दैट इज कॉल्ड कर्स। मैल का मतलब इज बैड और डिक्ट का मतलब इज कॉल्ड बेसिकली स्पीक। मैल इज बैड एंड डिक्ट इज बेसिकली कॉल्ड एज स्पीक। राइट, तो इफ आई एम सेइंग दैट मैलिस, मैलिस का मतलब बैड फीलिंग रखना, ये ध्यान रखना। मैलेडिक्शन हो गया किसी को कर्स करना। अच्छा गाइस देखो, एप्रोपोस का मतलब होता है बिल्कुल, एप्रोप्रिएट वर्ड सुना है हमने, है ना, एप्रोपोस। एप्रोपोस का मतलब होता है कोई भी चीज जब क्या होती है, एप्रोप्रिएट होती है। एप्रोपोस का मतलब क्या होता है गाइस? व्हेन समथिंग इज एप्रोप्रिएट, यानी किसी चीज को सूट करता हुआ, लेकिन उसके अंदर मैल आ जाए तो बताइए वो उसको क्या करेगा? ऑपोजिट करेगा। राइट, अच्छा देखो, आपने सबने देखा है गाइस एक सीरियल जिसको हम बोलते हैं भाभी जी घर पे है, भाभी जी घर पे है। राइट, देखा है उसने? गाइस हैव यू सीन द सीरियल भाभी जी घर पे है? शी लव टू यूज द मैलप्रॉपिज्म। मैलप्रॉपिज्म क्या होता है? जब बंदे क्या करते हैं यार, किसी वर्ड का बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड निकालते हैं, यानी उसके रिलेटेड वर्ड निकालते हैं। ठीक है, तो जब किसी, आपने भाभी जी घर पे देखा होगा गाइस, है ना, मैलिग्नेंट होता है यार कोई भी चीज अगर बैड हो। मैं कह रहा हूं यार द माई पड़ोसी इज गिविंग मैलेडिक्शंस टू मी। मैलेडिक्शन देना मतलब एक तरीके से मेरे को कर्स कर रहा है। अगर कोई पर्सन मेरे को कर्स कर रहा है तो ही इज गिविंग मी दी मैलेडिक्शन। ठीक है, अगर मैं बोलूं तो ही इज गिविंग मी मैलेडिक्शन, तो वो मुझे बहुत ज्यादा मैलेडिक्शन दे रहा है,
यानी ही इज कर्सिंग मी फॉर एन नंबर ऑफ रीजन. बेनिडिक्शन व्हेन समवन इज गिविंग यू सम काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स, and the malediction when someone is cursing you, right? So that is the difference. ये ध्यान रखना. I never watch serial, I hate them. अच्छा देखिए guys, that lady, the भाभी जी घर पे है, love to use malapropism. ठीक है, her English is not very good, तो she love to use the malapropism. ठीक है, और malapropism क्या होता है? वो होते हैं बेसिकली बहुत ज्यादा एक ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करना जहां पर अगर मैं बोलूं तो अगर थोड़ा सा उसमें मैं बोल सकती हूं यार, मैलप्रॉपिज्म मतलब होता है जो एक वर्ड आना चाहिए था वो वर्ड ना आके दूसरा वर्ड यूज कर रहे हैं. ठीक है, ये ध्यान रखना. जैसे किसी ने मानो सपोज किसी ने बोलना था एंटीडॉट, किसी ने बोलना था, डॉक्टर ने उसको एंटीडॉट दिया, उसने बोल दिया डॉक्टर ने उसको एनेक्डॉट दिया. अब एंटीडॉट का एनेक्डॉट बोल दिया उसने. ठीक है, एंटीडॉट का उसने क्या बोल दिया? एनेक्डॉट बोल दिया. ठीक है, यस, भाभी जो है वो ऑलवेज इंग्लिश वर्ड को मैलप्रॉपिज्म में टर्न कर देती है. हर वर्ड का ऐसा उल्टा वर्ड बोलते हैं कि वो कई बार बड़ा कॉमेडी हो जाता है. तो मैलप्रॉपिज्म मतलब हो गया किसी भी वर्ड को क्या करना, एक तरीके से ऑपोजिट वे में यूज करना, उसका रूप बिगाड़ के, इन अ वेरी वेरी इनएप्रोप्रिएट मैनर, बट टू क्रिएट सम काइंड ऑफ ह्यूमर. थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट हो जाता है गाइस मैलप्रॉपिज्म में, ये ध्यान रखिएगा. राइट गाइस, गेटिंग माई आइडिया फॉर द वर्ड. हमारा आंसर क्या बनेगा? मैलप्रॉपिज्म. ये ध्यान रखिएगा. मैलप्रॉपिज्म, अगर मैं बोलूं मैलप्रॉपिज्म जो है वो एक तरीके से हमारा यहां पर आंसर बनेगा. ये ध्यान रखिएगा. राइट, तो इफ वी आर यूजिंग मिस यूजिंग द वर्ड्स दैट इज कॉल्ड मैलप्रॉपिज्म. ये ध्यान रखिए. भाभी जी घर पे हैं, उल्टे सीधे, अगर देखो कई बार होता है ना, तो उसमें क्या कहते हैं इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स का इस्तेमाल हो जाता है. और जब वो बोलती हैं सही पकड़े हैं, है ना, नहीं, सटायर नहीं है यार, ये सटायर नहीं है. एक वर्ड को अगर कई बार हम होता है ना, तो जैसे अगर मैं बोलूं एक वर्ड को कई बार हम इनएप्रोप्रिएट तरीके से बोलते हैं, है ना, जैसे नखलऊ या लखनऊ है नखलऊ, कई बार लखनऊ को नखलऊ करके बोल देते हैं लोग. ये मैलप्रॉपिज्म में आ जाता है, ये ध्यान रखिए. चलिए आंसर बना है हमारा ये. मैलेडिक्शन में हम कर्स कर रहे हैं, मैलीस में हम बैड फीलिंग रखते हैं. मैलिग्नेंट इज वेरी वेरी हार्मफुल. राइट, सो द मैलिग्नेंट इज वेरी वेरी हार्मफुल. आ जाइए गाइस जल्दी से. दिस इज वेरी इजी गाइस, वेरी सिंपल रूट. दिस इज वेरी सिंपल रूट. चलिए, सोम आपका क्या है गाइस? सोम इज ऑलवेज रिलेटेड टू स्लीप. राइट, लॉक इज ऑलवेज रिलेटेड टू स्पीक. चलिए, और अगर देखिए किसी भी वर्ड में इन लग जाता है, किसी भी वर्ड में, जैसे सोम स्लीप है एंड वी आर यूजिंग इन, सो दैट मेक्स द वर्ड ऑपोजिट. दैट मेक्स द वर्ड ऑपोजिट. तो वो वर्ड को क्या कर देता है दोस्तों? वो वर्ड को ऑपोजिट बना देता है. ये ध्यान रखिए. ठीक है, यस, वी शुड अवॉइड यूजिंग दी मैलप्रॉपिज्म इन डेली लाइफ. तो गाइस सिंपल सी बात है, देयर इज अनदर रूट एम्बुल. देयर इज अनदर रूट एम्बुल. एम्बुल इज रिलेटेड टू वॉक. राइट, एम्बुल इज रिलेटेड टू वॉक. तो सोम इज स्लीप, एम्बुल इज वॉक. यूफेमिज्म इज नॉट मैलप्रॉपिज्म. यूफेमिज्म नहीं है संतोष, गलत बोल रहे हैं आप. ठीक है, यूफेमिज्म जो होता है वो होता है सॉफ्ट वर्ड, हार्श वर्ड्स को सॉफ्ट वर्ड में यूज करना. ठीक है यार, आपने देखा है कईयों की इंग्लिश, सम ऑफ द पीपल यूज वेरी गुड इंग्लिश, यानी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी इंग्लिश बोलते हैं. ठीक है ना, बहुत टेढ़ी मेढ़ी. आई विल गिव यू एन नंबर ऑफ एग्जांपल फॉर मैलप्रॉपिज्म लेटर ऑन. राइट, लेडी मैकबेथ वॉक इन द स्लीप. यस, लेडी मैकबेथ वॉक इन द स्लीप. देखिए, सोमनीलॉक्विस्ट टॉकिंग इन स्लीप. टॉकिंग इन स्लीप.
Right, somnambulist as the walking in sleep. Walking in sleep. Insomnia, som is sleep, in is opposite. So, without sleep. Without sleep. और यहां पे somnolent है, which is sleepy. Somnolent is basically you can call the one which is sleepy, right? तो somnolent जो हो जाएगा वो थोड़ा सा sleepy हो जाएगा guys. तो उसको उस हिसाब से हम लेके चल सकते हैं. Let's move to the next one. What do we have in the next one? चलिए. Very easy roots guys. Very easy roots. Just to give you an idea of the basic roots and the vocabulary. हमारे पास कहीं पर भी THEO, THEI और DEI आ जाए, that is related to God, right? That is related to God. और देखिए, if I am saying THEI और उसमें A लग जाए, तो A मतलब होता है without. A का मतलब क्या होता है दोस्तों? Without and the not, right? A का मतलब होता है without और not, right? तो अगर दीस्ट जो है वो होगा believer, right? Because THEI is God. THEI is God. So deist is a believer. So what do we call atheist? Atheist would be the non-believer. Atheist would be the non-believer. Right? Atheist would be the non-believer guy. I am an atheist. इसका शायद I think किसी का बहुत फेमस बुक भी है guys. I am atheist. है ना? किसी का एक बहुत फेमस बुक है. I am forgetting the name of that guy. शायद I am an atheist करके एक बुक है. That is very famous. Atheist is the one who does not believe in God. Theist is the one who believes in God. और मोनो क्या होता है गाइस? मोनो इज रिलेटेड टू वन. ठीक है, मोनो इज रिलेटेड टू वन. एंड व्हाट डू वी कॉल पेन इन इंग्लिश? गाइस कोई बताइए पेन का मतलब क्या होता है? मोनोथीस्ट इज द वन हु बिलीव्स इन वन गॉड. मोनोथीस्ट वो लोग होते हैं द वन हु बिलीव्स इन वन गॉड. भगत सिंह ने लिखी थी आई थिंक, है? चलिए देखिए, इसमें अगर पेन का मीनिंग देखो, व्हाट डू यू मीन बाय पेन गाइस? वेरी इंपॉर्टेंट रूट. वेरी इंपॉर्टेंट रूट अगर मैं लूं तो पेन. पेन का मतलब क्या है? जल्दी से प्लीज शेयर द मीनिंग ऑफ पेन. प्लीज शेयर द मीनिंग ऑफ पेन विद मी. इंग्लिश में पेन का मतलब क्या होता है? नहीं, पेन का मतलब यस, पेन का मतलब होता है ऑल. पेन का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? ऑल. गाइस बताइए, जो अभी एक कोरोना वायरस है, द रीसेंट द महामारी यू कैन कॉल इज देखिए वर्ड पेन से क्या बन जाएंगे? पेनाशिया, पेंडेमिक. पेनाशिया इज बेसिकली कॉल्ड क्योर फॉर ऑल डिजीज. This batch is going to be a panacea for vocabulary. I've kept this name as the panacea. ठीक है? So the panacea अगर मैं बोलूं that is related to all. So panacea is basically the cure for all disease. Panacea क्या है guys? Cure for all disease. And देखिए डैम का मतलब क्या है? डैम is called basically the people. डेमोक्रेसी है ना इंडिया में, इंडिया में डेमोक्रेसी है. तो अगर मैं बोलूं पेंडेमिक, डैम मतलब पीपल और पेन का मतलब विच इज इंपैक्टिंग ऑल. ठीक है? एंड दैट इज द रीजन व्हाई कोरोना वायरस वाज डिक्लेयर पेंडेमिक, बिकॉज इट वाज इंपैक्टिंग ऑलमोस्ट ऑल पीपल. राइट गाइस, देखो एक डिजीज को स्प्रेड होने का देयर आर 3 वेज. वन इज द एपिडेमिक. Right, it's very local disease. Epidemic is a local disease which is spreading across the local areas.
ठीक है, एंड देर इज एपिडेमिक, एपिडेमिक विच विल बी स्प्रेड इन द लार्ज एरिया, एपिडेमिक थोड़ा सा लार्ज एरिया में फैलेगा, एंड देर इज लास्ट वन विच इज कॉल्ड द पेंडेमिक विच इज प्रॉब्ली द एंटायर वर्ल्ड, और एटलीस्ट पूरी कंट्री में फैलने वाला चीज और वर्ल्ड में फैलने वाला, एंटायर कंट्री और वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड पेंडेमिक. देर आर 3 वे द डिजीज इज स्प्रेड, ठीक है, उसको बोल सकते हैं. और अगर मैं लूंगा इस, तो यहां पर क्या आ जाएगा, पेंडेमिक, पेनेशिया, पेन इंडिया टॉप, राइट. सो पेन इज अ राइट वर्ड टू बी यूज फॉर, लाइक फॉर ऑल. और पेंथीस्ट क्या हो जाएंगे गाइस, बिलीव इन ऑल गॉड. पेंथीस्ट इज बिलीव इन ऑल गॉड या ऑल रिलीजियन, you can say. So guys, the purpose of this is to make you understand the roots behind these words. Like theist is, I know, like you can say theist is the one who is a believer in God. A lagne par you just completely switch it off to the non-believer. A means without. Or mono is related to one God, or the one who believes that there is only one God. He believes that every God is same. And oh sorry, it is endemic. Guys, sorry, ये जो आपका है ये एंडेमिक है. मैं आ जाता हूं. डिजीज स्प्रेड्स लाइक एपिडेमिक, like that is spread in the local area. There is another one, क्या मैं लिख रहा हूं. एक तो है गाइज एंडेमिक, एंडेमिक स्पीशीज आपने पढ़ा होगा. एंडेमिक इज लोकल एरिया में जो फैलता है. नाउ देयर इज अनदर वन विच इज कॉल्ड एपिडेमिक, ये लार्ज एरिया में है. एंड देयर इज अनदर वन विच वी कॉल इट एज पेंडेमिक, विच वी कॉल एज पेंडेमिक. ये आपका अगर मैं लूं तो एंटायर वर्ल्ड में उस तरीके से आप ले सकते हैं, राइट, एंटायर वर्ल्ड में. चलिए, राइट आंसर वुड बी गाइस एथीस्ट, ये ध्यान रखिएगा. राइट आंसर वुड बी एथीस्ट, बिलीवर ऑफ अ गॉड एंड बिलीव इन गॉड, विच इज करेक्ट. बिलीव इन गॉड है यार, बिलीवर इन गॉड नहीं होता, बिलीवर ऑफ गॉड होता है, बिलीवर ऑफ गॉड. चलिए आ जाइए गाइज, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. अब गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूट विच इज देयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूट. प्लीज ट्राई टू, आई थिंक स्पेलिंग करेक्शन सर ये कर दिया है मैंने यार. आई थिंक आई ऑलरेडी हैव गिवन यू द स्पेलिंग करेक्शन. एंडेमिक, एपिडेमिक एंड द पेंडेमिक, राइट. 3 वे ऑफ the way the disease is reported or spread. Talking in a sweet voice. अब देखिए गाइस, अगर मैं बोलूं यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट चलेंगे यहां पे, काफी इंपॉर्टेंट. समटाइम यू माइट फाइंड द वर्ड वेरी वेरी डिफिकल्ट. देखिए पहला रूट है लॉक. लॉक का मतलब होता है गाइस स्पीक, राइट. First root is lock and the meaning of lock is speak. आंचल, पेंडेमिक बेटा अगर मैं बोलूं इसमें, सॉरी, पेंडेमिक अगर मैं बोलूं तो पेंडेमिक इज समथिंग. आपने देखा है व्हाई द कोरोना वाज डिक्लेयर पेंडेमिक, बिकॉज इट वाज इंपैक्टिंग द एंटायर वर्ल्ड. पेंडेमिक होती है अ डिजीज विच इज इंपैक्टिंग द एंटायर वर्ल्ड. Why the corona was declared, coronavirus was declared the pandemic? कोरोना वायरस को पेंडेमिक क्यों बोला गया दोस्तों? Because it impacted the entire world. पूरे संसार में फैल गई है, राइट. और अगर मैं बात बोलूं तो क्या बोल सकते हैं इसको? देखिए पेंडेमिक का मतलब एबोला वायरस है ना, स्वाइन फ्लू, दोज आर बेसिकली द पेंडेमिक. अब देखिए इसमें कुछ और रूट है. सरकम, सरकम का मतलब होता है बेसिकली अगर मैं बोलूं तो राउंड या घुमा फिराकर, है ना, घुमा फिराकर.
सरकम मतलब चारों तरफ घुमा फिरा कर। मोनो का मतलब वन होता है, मोनो इज यूज फॉर वन, राइट, मोनो इज यूज फॉर वन। अब को का मतलब टुगेदर होता है, वैसे तो को का मतलब टुगेदर होता है गाइस। मैं इन वर्ड्स को यूज करके दिखाता हूं, देखिए। और ब्लैंडिश, ब्लैंडिश का मतलब होता है चापलूसी करना, एड्यूलेट करना। आई नेवर लाइक टू डू और ब्लैंडिश माई बॉसेस। आई नेवर लाइक टू ब्लैंडिश माई बॉसेस। अगर मैं अपने बॉस को ब्लैंडिश नहीं करता हूं तो इसका मतलब मैं उससे चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करता हूं। आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ फ्लैटरी। तो ब्लैंडिश का मतलब एक तरीके से फ्लैटरी भी होता है, किसी की चापलूसी करना। ब्लैंडिश का मतलब क्या होता है? किसी की चापलूसी करना। आई नेवर लाइक टू ब्लैंडिश माई बॉसेस। आई नेवर लाइक टू एड्यूलेट माई बॉसेस। चलिए अब पहले चारों वर्ड को समझते हैं। अगर कोई ब्लैंडी लॉक्वेंट बात कर रहा है तो गाइस ब्लैंडी मतलब चापलूसी भरा, और चापलूसी व्हेन यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ चापलूसी इट मींस यू आर इन अ वेरी वेरी सॉफ्ट स्पोकन वॉइस, जी बॉस, यस बॉस, है ना। सो ब्लैंडी लॉक्वेंट मींस यू आर स्पीकिंग बट विद अ टोन ऑफ अ चापलूसी, राइट। ब्लैंडी लॉक्वेंट व्हेन यू आर स्पीकिंग but you are speaking with a tone of a chaploosi. So the right answer will be blandiloquent. ठीक है, मतलब हाँ, I normally don't say the word बेटा, है ना। गलती से निकल गया यार, ठीक है, डोंट मतलब हाँ जी। चलिए अगर मैं बोलूं द blandiloquent, blandiloquent is someone who is doing some kind of blendish. Blendish means you are using the soft word and you are speaking, it means you are speaking soft word. ठीक है, सो ब्लैंडिलोक्वेंट वन हु इज डूइंग दी चापलूसी बाय यूजिंग दी सॉफ्ट वर्ड्स. सो द राइट आंसर इज ब्लैंडिलोक्वेंट. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट थ्री वर्ड्स एज वेल. Guys, I don't believe in any kind of circumlocution. जैसे suppose you will ask me something or if I don't know, I will simply come and say, brother, I don't know anything about it. You can simply go and approach Adhyan Mantra. ठीक है, I'm not that kind of person. I've been very, very candid in my speaking. I have been given my heart and soul to the language. So don't want to use the circumlocutory language. Circumlocution होता है guys घुमा फिराकर बात करना. सरकम मतलब घुमाना और लॉक मतलब स्पीक, राइट. तो सरकमलोक्यूशन टू टॉक हेयर एंड देयर, टू टॉक हेयर एंड देयर. और गाइज इसके अंदर ये चीज याद रखना, इसके अंदर एक दो वर्ड और मैं डालता हूं. ओहो, स्टार्ट कॉलिंग अस बेटा, वी लव टू हियर. चलिए सरकमलोक्यूशन को गाइज बहुत प्यारा वर्ड है, मेरा फेवरेट है, प्रिवैरिकेट. डू नॉट प्रिवैरिकेट, कम टू द पॉइंट. लाइंस भी लिख सकते हो गाइज, यू कैन यूज द लाइंस. मैं बार बार बोल रहा हूं, वोकैब टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स, ठीक है, वोकैब टेक्स अ लॉट ऑफ मेहनत और दी हार्ड वर्क. और मैं बार बार बोलता हूं गाइज, ये बहुत टफ काम होते हैं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई ओनली अ फ्यू पीपल कैन डू इट. प्रिवैरिकेशन करना, आई नेवर लाइक टू प्रिवैरिकेट, आई एम वेरी कैंडिड इन माई स्पीकिंग. ठीक है, सीधी सीधी बात करना, प्रिवैरिकेट. यस, यू कैन से द बीट अबाउट दी बुश या बीट अराउंड दी बुश. घुमा फिरा के बात करना, बीट अराउंड दी बुश. बहुत अच्छे वर्ड हैं गाइज ये, जिसमें हम बातें कर सकते हैं. या प्रिवैरिकेट मत करो, सीधा आ जाओ पॉइंट के ऊपर. ठीक है, माई मदर लॉ ऑलवेज टॉक सर्कमलोक्यूटरी. वेरी गुड, वेरी नाइस लाइन. सर्कमलोक्यूशन ऑपोजिट इज टॉक टर्की. यार मेरा बड़ा फेवरेट है गाइस, मैं कई बार लोगों को बोलता हूं लेट्स टॉक टर्की. मैंने आपके सामने एक लाइन बोली, देखिए कितना अच्छा वर्ड है ये, लेट्स टॉक टर्की. लेट्स टॉक टर्की मतलब सपोज यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम विद माई बैच. ओके, यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम विद माई बैच
LOC और LOQ सेम है यार, है ना अनुश्री? LOC और LOQ सेम है। अंकित, आई कैन सी योर मैसेज, मेरे को सबके मैसेज दिख रहे हैं गाइस, कोई दिक्कत नहीं अंकित, एंजॉय दी फर्स्ट क्लास। ओके, मैंने बोला यार लेट्स टॉक टर्की, बताओ मुझे वेयर आर दी फ्लॉज। कोई नहीं, घबराना नहीं है, मैं बैठा हूं सामने, वॉट एवर यू फील लाइक। सपोज प्राइम मिनिस्टर के पास दी कैबिनेट इज सिटिंग एंड प्राइम मिनिस्टर सेज आज लेट्स टॉक टर्की, मुझे बताओ कहां कहां कौन कौन इशू है, एंड आई एम गोना रिजॉल्व दैट इशू, बट आई डू नॉट वांट एनी ब्लैंडीलॉक्वेंट लैंग्वेज, और आई डू नॉट वांट एनी सर्कमलॉक्यूटरी लैंग्वेज। लेट्स टॉक टर्की, आज सीधे सीधे बात हो जाए। और गाइज ये मैंने बहुत न्यूज के अंदर सुना है, लेट्स टॉक टर्की टुडे, है ना? लेट्स टॉक टर्की यानी आओ सीधी सीधी बात करते हैं, सीधा सीधा वो करते हैं, ठीक है? माई बड़ी माँ इज वेरी ब्लेंडीलॉक्वेंट, वेरी नाइस। चले गाइस, तो अगर मैंने बोला लेट्स टॉक टर्की यानी आओ दिल खोल के बात करते हैं और सीधी सीधी बात करते हैं, तो बड़ा प्यारा फेज है इंग्लिश में, लेट्स टॉक टर्की, टू बी ऑनेस्ट एंड सिंसियर एंड कैंडिड, ऑनेस्ट एंड sincere, and you can say the candid speaking. Candid speaking means when you are like, speaking in a very, very straightforward manner. चलिए, colloquial जो लैंग्वेज होती है गाइस, those are basically the regular language और the informal expression, ठीक है? अब इसको मैं ये भी बोल सकता हूं डेली बोलचाल की भाषा। कोलोकियल लैंग्वेज मतलब जो आपके रेगुलर की बोलचाल की भाषा है, दैट इज कॉल्ड कोलोकियल लैंग्वेज। काफी जगह यूज होता है कोलोकियलिज्म, यानी आपके रेगुलर की भाषा। और आपने कहा सर कैन यू और यू ऑल्सो गिविंग द एलोक्यूशन लेसन? यस, अर्नव गोस्वामी ऑलवेज टॉक्स टर्की एंड ही लव टू यूज दीज वर्ड्स। कल्याणी, बिल्कुल आपने सही बंदा पिक करा है ना? Arnav Goswami even are using this word on a regular basis. Let's talk Turkey today. I've seen Arnav Goswami using this word n number of time. Let's talk Turkey today. आओ आज सीधी सीधी बात करते हैं। अच्छा, मैंने बोला यार एलोक्वेंट स्पीकर। एलोक्वेंट स्पीकर क्या होता है गाइस? संदीप माहेश्वरी is an eloquent speaker. If I am saying Sandeep Maheshwari, an eloquent speaker, Anvesha, we can also use call spade a spade, ठीक है? अब ब्लैंडीलॉक्वेंट थोड़ा नेगेटिवली ही बोला जाता है, ठीक है? अनुश्री, ब्लैंडीलॉक्वेंट विल यूज इन अ नेगेटिव वे। चलिए, इफ आई एम सेइंग ही इज एन एलोक्वेंट स्पीकर, सो इट मीन्स टू स्पीक करेक्टली एंड इफेक्टिवली। टू स्पीक इफेक्टिवली, बहुत जबरदस्त तरीके से बोलना, बहुत जबरदस्त तरीके से बोलने को हम बोलते हैं। अगर मैं बोलूं तो एलोक्वेंट। आपने बोला सर कैन यू गिव मी द एलोक्यूशन लेसन? एलोक्यूशन लेसन मतलब यू वांट टू इंप्रूव योर स्पीकिंग, राइट? यू वांट टू इंप्रूव योर स्पीकिंग। सो मैंने बोला चलिए लेट्स स्टार्ट टेकिंग सम एलोक्यूशन लेसन, यानी आइए स्पीकिंग भी इंप्रूव करते हैं। एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट इन दिस सेशन to help you to improve your speaking as well, right? हम लोग speaking, yes, gift of the gab बोल सकते हैं। eloquent speaker, the one who is carrying gift of the gab, जिनके पास skill of talking होता है। gift of the gab मतलब skill in talking, यानी जो बहुत अच्छी बोलते हैं, who can impress people, who can woo people by their speaking, जो लोगों को अपनी स्पीकिंग से इंप्रेस कर पाते हैं, ठीक है? उसको बोलते हैं हम एलोक्वेंट स्पीकर और द वन कैरिंग अ गिफ्ट ऑफ द गैब, राइट? और गाइस ये मान के चलिएगा, आप ये नंबरिंग मत देखिएगा, हम लोग ओवरऑल देखेंगे तो हम 60, 70, 80 वर्ड कर चुके होंगे। एलोक्वेंट हो गया, ठीक है? ब्लैंडिश, सब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। व्हाट यू नीड टू डू, मैंने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेशन 15-minute revision is very, very, very important for our classes. चलिए नेक्स्ट आइए गाइस। One who talked pompously, or I'm not that eloquent speaker, ठीक है?
आई एम नॉट दैट एलोक्वेंट स्पीकर पूनम, ठीक है। वेंकैया नायडू इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलोक्वेंट स्पीकर, यस वेंकैया नायडू, ठीक है, मतलब उतना भी नहीं है वो, ठीक है। चलिए देखिए इसमें होगा क्या, अब इसमें वर्ड समझते हैं, रूट समझते हैं, ठीक। देखो ग्रैंड का मतलब क्या होता है, ह्यूज, बड़ा, है ना, ह्यूज या बड़ा। ग्रैंड पार्टी बोलते हैं ना, ग्रैंड वेलकम। तो पॉम्पस मतलब होता है गाइस, जैसे ने आई क्या कहते हैं, इन अ पॉम्पस मैनर, यार द मैरिज वॉज अरेंज्ड इन अ वेरी वेरी पॉम्पस मैनर, बड़ा ऑस्टेंटेशियस मैरिज था। अगर कोई भी चीज बड़ी पॉम्पस और ऑस्टेंटेशियस है तो वो बहुत ज्यादा दिखावटी टाइप में आ जाता है। शी वॉज वेयरिंग एन ऑस्टेंटेशियस ज्वेलरी, मैं बोलूंगा शी वॉज वेयरिंग एन ऑस्टेंटेशियस ज्वेलरी इन द मैरिज, यानी उसने मैरिज के अंदर बहुत ज्यादा दिखावटी, बहुत ज्यादा शोई, बहुत ज्यादा पॉम्पस। एक पॉम्पस मैरिज क्या होगा गाइस, बहुत ज्यादा एक तरीके से जो बहुत ज्यादा दिखावट टाइप में होता है, राइट। तो इसको अगर मैं बोलूं जो टॉक पॉम्पसली करते हैं, देखिए टॉक के लिए तो लॉ की रूट आएगा, है ना, और पॉम्पसली करना मतलब ग्रैंड। मैं कहूंगा ग्रैंडीलॉक्वेंट स्पीच। फिलीबस्टर यार नीरू अभी बताऊंगा मैं, फिलीबस्टर इसमें नहीं आता है, ठीक है, फिलीबस्टर थोड़ा सा अलग आ जाता है, मैं बताऊंगा, राइट नीरू, फिलीबस्टर को मैं बताऊंगा। देखिए मैंने कहा यार बड़ी बड़ी बातें लाल किले से मत करिए, ग्राउंड पे काम कर लीजिए, है ना। तो ग्रैंडीलॉक्वेंट स्पीच देने से कुछ नहीं होगा, ग्राउंड पे का, और मैं नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग ऑन द ग्राउंड लेवल, ठीक है, बट डोंट टेक इट अदरवाइज, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर कोई भी बड़ी बड़ी स्पीचेस देते हैं दैट इज कॉल्ड दी, क्या बोलेंगे, पॉम्पस स्पीच, यानी ग्रैंडीलॉक्वेंट मैनर में। मैंने तो एक लाइन भी लिखी थी ना गाइस, ग्रैंडीलॉक्वेंट स्पील फ्रॉम द रैम्पर्ट ऑफ लाल किला is not going to keep the wolf away from the door। चलिए बताइए मीनिंग क्या है, ग्रैंडीलॉक्वेंट स्पील फ्रॉम द रैम्पार्ट ऑफ लाल किला is not going to keep the wolf away from the door। देखो गाइस कितने अच्छे वर्ड आ गए इसमें। इस लाइन को, पूरी लाइन को लिखिए, पूरी लाइन को लिखिए और बताइए, देखिए जरा क्या आ रहा है आंसर। सॉरी, ग्रैंडीलॉक्वेंट स्पील, देखिए ग्रैंडीलॉक्वेंट मतलब बड़ी बड़ी भाषण, मैं ये कर दूंगा, सिंगापुर बना दूंगा, है ना, आई विल टर्न इंडिया इनटू अ कंप्लीटली अ यूटोपिया, ठीक है। तो उसको अगर मैं बोलूं तो वहां पर हम बोलेंगे ग्रैंडी। स्पील का मतलब होता है स्पीच, स्पील, हैव यू प्रिपेयर्ड योर स्पील फॉर द रिसेंट अपकमिंग थिंग। स्पील मतलब होता है स्पीच, भाषण, या फिर हैव यू प्रिपेयर्ड योर स्पील फॉर द नेक्स्ट रैली। तो स्पील मतलब भाषण। और देखिए वो कह रहा है बड़े बड़े भाषण। रैम्पार्ट होता है लाल किले का चबूतरा, और यू कैन से द स्टेज और द डायस, ठीक है। डायस से, लाल किले के चबूतरे से बड़े बड़े भाषण देने से, ठीक है, वो गरीबी दूर नहीं हो जाएगी। टू कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर, इसका मतलब होता है भुखमरी को दूर रखना। टू अवॉइड स्टारवेशन, टू अवॉइड स्टारवेशन, ठीक है। सो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम जो है उस पर गाइस, जैसे मैं, यस, बिग टॉक्स फ्रॉम द बेस ऑफ लाल रेड फोर्ट विल नॉट कीप आवर प्रॉब्लम अवे फ्रॉम द लाइव्स।
देखो इसका मतलब यह है उससे गरीबी और भुखमरी दूर नहीं होती है, राइट, ये ध्यान रखना। वेरी नाइस। देखिए इंटरलॉक्यूशन, आप इंटर मतलब होता है आपस में, इंटर मतलब होता है आपस में बात करना, इंटरलॉक्यूटर्स मतलब जो, जैसे अगर पल्पिट, वेरी नाइस यार संतोष, वेरी गुड वर्ड यार पल्पिट, ठीक है। तो इंटरलॉक्यूटर होते हैं विच आर टॉकिंग टू ईच अदर, आपस में बात करना। इंटर मतलब आपस में, परस्पर, एंड लॉक मतलब स्पीकिंग। ओमनी मतलब क्या होता है गाइस, आज का लास्ट वर्ड कर रहे हैं हम लोग, आज का लास्ट वर्ड कर रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट में 16 से शुरू करेंगे। ओमनी, ओमनी लॉक्वेंस। देखिए दोस्तों, ओमनी का मतलब होता है एवरीवेयर, सर्व, है ना। ओमनी प्रेजेंट आपने सुना होगा, ओमनी पोटेंट आपने सुना होगा, राइट। आपने ओमनीवोरस सुना होगा, ओमनीवोरस हु ईट्स ऑल द थिंग्स। ओमनीसाइंट जो सारी दुनिया के बारे में जानता है, साई मतलब जानना, SCI मतलब नो, राइट, SCI मीन्स नो, तो ओमनीसाइंट जो सब जानता है। अच्छा बताइए गाइज, ओमनी लॉक्वेंस, ओमनी लॉक्वे, ओमनी मतलब एवरीवेयर, ठीक है, ओमनी मतलब एवरीवेयर, या जो बोल सकते हो ऑल। तो गाइज बताइए, को आजकल मैंने देखा है ऑल यूट्यूबर्स आर ओमनी लॉक्वेंट। यार यूट्यूब पे आके कोई भी कुछ भी बकवास करके चला जाता है, मेरे को बड़ा इरिटेशन होता है, ठीक है। पीपल हैव बिकम ओमनी लॉक्वेंस। हैव यू हर्ड अबाउट खान सर? Although I do not talk about any YouTuber on our channel, but have you seen Khan sir? सारी दुनिया का ज्ञान है यार उन्हें, है ना। ही इज मेकिंग वीडियो ऑन ऑल द सिचुएशंस ऑन इंडिया, है ना। अगर मैं बोलूं इंडिया में हर सिचुएशन पे वो बात करते हैं यार, व्हाट आर शिट गोइंग ऑन यूट्यूब, ठीक है। मतलब हाउ पीपल कैन बिकम ओमनी लॉक्वेंस। लोग मुझे लिटरेचर पे बोलते हैं कहने को, मैं लिटरेचर पे नहीं बोलता, और कांट आई टीच लिटरेचर। अगर मैं आ गया तो कितना है यार, 20 क्वेश्चन रोज पढ़ाना क्या होता है, कुछ भी नहीं, है ना। बट आई डोंट नो व्हाई पीपल ऑन कम ऑन यूट्यूब एंड बिकम दी ओमनीलॉक्वेंस। ओमनीलॉक्वेंस मतलब हु कैन टॉक ऑन एवरीथिंग, कैन टॉक ऑन एवरीथिंग। उनको इकोनॉमी का भी ज्ञान है, उनको ग्लेशियर कैसे फटते हैं वो भी पता है, ठीक है। एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल गाइज, मतलब आई एम रियली फेड अप, आई एम रियली फेड अप विद दीज गाइज। एक देव राठी है, पता नहीं कौन है, देयर आर लॉट ऑफ अदर पीपल who come on the YouTube and talk about every issue which is there in the country. So omniloquence talk on every issue, जो हर किसी पर बात कर सके। और प्लेनी मतलब होता है गाइस जैसे प्लेनिट्यूड ऑफ इंफॉर्मेशन, प्लेनिट्यूड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन गूगल, प्लेनिट्यूड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन गूगल, गूगल के ऊपर इंफॉर्मेशन का प्लेनिट्यूड है, यानी भरी पड़ी है, गैलोर। यस खान सर पटना वाले, यस मजूबी सही कह रहे हैं। ही इज बिकम दी ओमनीलॉक्वेंस। लोग आते हैं देखते भी हैं, मुझे तो आज तक पता नहीं लगा क्या देख रहे हैं। और डज ही हैव ऑल द नॉलेज? आर यू जेलेस? नॉट एग्जैक्टली जेलेस आई वुड से, बट मेरे को कई बार डाइजेस्ट नहीं होता। वाई, मतलब कैन यू कैरी द नॉलेज फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स? मेरे को बड़ा झिल नहीं पाता है। चलिए, प्लेनिलॉक्वेंस मतलब होता है बहुत ज्यादा बोलना, टू टॉक टू मच। बस 2 मिनट। टू टॉक टू मच, यानी जिसको हम लोक्वेशियस भी बोलते हैं। प्लेनिट्यूड, प्लेनिट्यूड का मतलब, अगर मैं बात करूं, प्लेनिट्यूड का मतलब क्या होता है गाइस, राइट। प्लेनिट्यूड यानी व्हेन देयर इज एन नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन। ओमनीलॉक्वेंट यार यू कैन यूज इट एनी पर्टिकुलर वे। ओमनीलॉक्वेंट कैन बी यूज्ड इन पॉजिटिव, नेगेटिव, एंटायरली अप टू यू हाउ डू यू अप्लाई द सेंस। तो प्लेनिलॉक्वेंस होता है गाइस जब आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, ठीक है। ओमनी जब आप, व्हेन यू आर कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल दी सब्जेक्ट्स।
planiloquence when you are talking a lot. That is nice person. Yes, Harish, I got your word. I'm not saying he's nice or not nice. ठीक है, don't take it otherwise. But what I'm trying to say is, can you have the knowledge for all the subjects? Do you have the knowledge why the glacier was outburst? मतलब, for me, I finding it very difficult. Or I have seen how the people are, teaching on YouTube. I'm not jealous of anyone, but I know how they are teaching. Or if you want, मैं तो सब टीचर्स को ये बोलता हूं, डू यू वांट मी टू टीच योर सब्जेक्ट? सुबह बता देना, शाम को पढ़ा दूंगा. आज के टाइम में यूट्यूब यही है गाइस, सुबह 10 क्वेश्चन उठाओ, शाम में पढ़ा दो, बस हो गया यूट्यूब, राइट? सो एक्चुअल नॉलेज कम्स इनटू पिक्चर व्हेन यू फेस द रियल ऑडियंस. एक्चुअल नॉलेज कम्स इनटू पिक्चर व्हेन यू फेस द रियल ऑडियंस, राइट? चलिए, वर्बोस, गैरुलस, ये सब वर्ड हम यूज कर सकते हैं. आज इतना ही था यार मेरे पास. हमने कुछ और वर्ड्स देखे, शायद कुछ काफी हद तक देखे. और हमारा आंसर क्या आएगा गाइस? ग्रैंडिलोक्वेंट. 1 आवर का ही डिस्कशन करा करेंगे, ठीक है? 1 आवर का ही डिस्कशन करा करेंगे, राइट? तो ये ध्यान रखिएगा, विल बी हैविंग अ डिस्कशन ऑफ 1 आवर. बेनिजन मतलब होता है आशीर्वाद. बेनिजन मतलब होता है आशीर्वाद. बेनिडिक्शन का सिनोनिम्स है. जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन. ये सही है गाइस, बिल्कुल सही कह रहे हैं. और आई नो गाइस, मैं थोड़ा टाइम हो गया है, हम लोगों को पता लग जाता है. समटाइम अदर पीपल आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है. बट यस, हाँ, यूट्यूब इज अ प्लेटफॉर्म फॉर एंटरटेनमेंट. खान सर इज नॉट अ टीचर. भाई पता नहीं, मैं मतलब आई डू नॉट टॉक अबाउट पर्टिकुलर पर्सन सो मच. ओके, आई जस्ट गेव द एग्जाम्पल ऑफ ओमनीलोक्वेंस. मैंने सिर्फ आपको ओमनीलोक्वेंस का एग्जाम्पल दिया, उससे ज्यादा उसको ट्रीट मत करिए. ठीक है, अगर मैं बोलूं इंटरलॉक्यूशन होता है आपस में बात करना. इंटर हो गया आपस, लॉक मतलब स्पीक. अच्छा गाइज, मैं फिर बोल रहा हूं, वी राइट नाउ वी आर डूइंग द रूट वर्ड. ओके, राइट नाउ वी आर डूइंग द रूट वर्ड. सो द पर्पस इज टू अंडरस्टैंड रूट्स. क्रैमिंग मत करिए अभी. यू आर नॉट सपोज टू डू एनी काइंड ऑफ क्रैमिंग, राइट? तो अभी क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है. लॉक यहां पे, लॉक यहां पे, लॉक यहां पे, लॉक यहां पे. ग्रैंड मतलब बड़ा, इंटर मतलब आपस, ओमनी मतलब सब, और प्लानी मतलब बहुत, राइट? सो दिस इज द वे यू नीड टू अंडरस्टैंड द वोकैबुलरी. विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन. आई विल नॉट टेक मोर देन 1 आवर गाइज, ठीक है? विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन. और लेट्स सी व्हाट कम्स आउट, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, चलिए, थैंक यू सो मच. बाय बाय फ्रॉम माय साइड. आई होप यू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट, ठीक है? और चलिए, थैंक यू सो मच. माय नेम इज दीपक. बाय बाय गाइस.